देखो राजा, इलस्ट्रेशन 32, डेको लिमिटेड। ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. Sales for the year amounting to rupees 2 lakh, out of which 60% is for cash. Can you tell me cash sales? 120 means 1,20,000, yes or no? Cash sale. Cash sale direct method ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? स्टार्टिंग ऑपरेटिंग ਦੇ अंदर कैश सेल्स, ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। नेक्स्ट लाइन, cost of goods sold was 50% of total sales. Okay. All inventory is purchased on credit. मतलब purchases सारे गड़े हैं credit purchase. There is no cash purchases at all. ठीक है. Then given है collection from debtors 60,000 rupees. Collection from debtors. This will also come in operating activities inflow. Payment to creditors. Cash outflow. Payment to creditors. Okay. Then next की given है depreciation charge during the year on machinery. Depreciation charged operating ਚ ਤੁਸੀਂ याद कर ਦਿੱਤੀ provided but indirect methods. Direct ਵਿੱਚ directly ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ cash flow ਦੇ ਅੰਦਰ, but machinery account ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। Then there is given goodwill written off, ਕਿਹੜੇ methods ਕੰਮ ਆਣਾ? Operating activities, but which method? Indirect. Direct methods किते नहीं काम आना। Next point is given total salary for the period amounting to 6,000, out of which 1,000 was outstanding. Means outflow कितना है? Salary total कितनी सी? 6,000, तो 1,000 तो outstanding है, means not yet paid. Outflow कितना है सिर्फ 5,000 का। Office expenses paid in cash 8,000 outflow. Outstanding office expenses 2,000. Okay. Land was purchased for rupees 2,50,000 and the consideration was discharged by the allotment to the vendors of 0% convertible debentures. Land purchase kita. Normally it will go to which activity? Investing. But ki the cash outflow ho raha? No, it's not land account debit to cash. It's land account debit to debentures. So na the land purchase the outflow है, ना issue of debentures the inflow है। Agree yes or no? बाद भी normally issue of debentures ਦੀ entry ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? Bank account debit to debentures, ਉੱਥੇ inflow ਹੁੰਦਾ, financing ਚ positive ਪਾਉਂਦੇ। Land purchase ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Outflow ਹੁੰਦਾ, land account debit to cash bank, मतलब outflow in investing activities। But वो दोनों आपस ਚ हो रहे हैं, cash ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ flow ਹੀ ਨਹੀਂ है। Not neither for land purchased nor for issue of debentures. This was for consideration other than cash. Cash flow ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। Fully paid equity shares of the face value rupees 2 lakh were issued at a premium of 10%. 2 lakh वाले 10% premium थे। Premium means कितना? 20,000. Total cash inflow कितना होगा? 2,20,000. केडी activities? Financing. Positive, negative? Positive. Next one. A machine was sold for rupees 15,000. The book value of the machine was 12,000. Machinery account से जाऊंगा पर selling price still तो given है था। Investing activities positive, sale। Next point, ਜਿਹੜਾ loss है वो देखते हैं, अगर indirect होया था ਆਪਾਂ देख सकते हैं ਉਹਨੂੰ, otherwise it will not be used। Another machine having book value 4,000 was scrapped and was treated as ordinary business loss। Okay. A vehicle was purchased for cash at a cost of rupees 1,50,000. Dividends paid during the period amounted to 40,000. Income tax paid 10,000. Cash in hand at bank 31st March 21. Opening है या closing? Compare the date. ठीक है बना year ending 31st March 21 और नीचे की के बना 31st March 21 means it's closing balance. Opening is not given. Okay. You are required to prepare a cash flow statement using direct method. Using direct method। ओके। सो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ।
कोई भी कि फर्स्ट पॉइंट सेल्स आ गए, कैश सेल्स कि नहीं, 1,20,000 थर्ड को रिसीव फ्रॉम और कैश सेल्स आ गए। उस बाद रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स भी गिवन सी डायरेक्टली 60,000 पुट करता ऑपरेटिंग इन पॉइंट है, ठीक है। पेड टू सप्लायर्स कितनी पेमेंट वो भी गिवन है 45,000 आउटफ्लो नेगेटिव, ठीक है। उस बाद होर का दी पेमेंट कितनी सानू एक्सपेंसेस दे पॉइंट्स गिवन सी, एक्सपेंसेस दे पॉइंट चेक करो। सैलरी 6,000 चो 1,000 आउटस्टैंडिंग है, मींस आउटफ्लो कितना होया 5,000 नेगेटिव, यस और 5,000 पुट करोगे थे 6 माइनस 1 5। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस पेड इन कैश 8,000 आउटस्टैंडिंग का कोई कंसर्न नहीं है, सो आउटफ्लो कितना होया 8,000, सो टोटल की आगे खर्चे आउटफ्लोज 58,000। उन्होंने इकट्ठा लिखा, यू विल राइट सेपरेट पॉइंट, सैलरी का अलग, पेमेंट टू सप्लायर्स का अलग और आउट जेडे भी ऑफिस एक्सपेंस होगा अलग, सारे अलग लिखोगे। बट एनी डाउट नहीं। उसके बाद इनकम टैक्स पेड भी ऑपरेटिंग चल 10,000 आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन पॉजिटिव, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सब कुछ कैलकुलेटेड गिवन। ਤੁਹਾਨੂੰ देखो ऊपर गिवन सी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आल्सो एंड ऊपर कैश सेल्स भी क्लियर हो चुकी है, तो ਸਾਨੂੰ कोई डेटर्स अकाउंट ਦੀ डिटेल्स ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਚੇजेस ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਰਚੇजेस ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਟਰम्स गिवन ਹੁੰਦੀ कैश या क्रेडिट पे ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। बट पहली चीज रितिका क्वेश्चन ने फोकस करवा दिता कि ऑल परचेजेस वर ऑन क्रेडिट, मतलब कैश परचेज तो है ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਬਚੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, नो यस और नो, कैश परचेज है नहीं और क्रेडिटर्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 12th पॉइंट मशीनरी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, 13th पॉइंट मशीनरी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਦ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਸੋਚੋ। डेप्रिसिएशन चार्ज अकाउंट के अंदर तो आ जाओगे, कैश फ्लो इसका कोई रोल नहीं है, दैट्स ओके। 12th पॉइंट ने सेल ऑफ मशीन बारे दसिया, पुट कर दोगे लॉस पालोगे, दैट्स ओके। 13th पॉइंट ने क्या कि 4,000 वाली मशीन की हो गई ट्रैप। बट टेल मी वन मोर थिंग, जितने मेरे माइंड से है कि यार अकाउंट बना के कुछ फाइंड हो सकता है, सेल तो गिवन है, परचेज भी तो फाइंड हो सकती ना। बट मेरा मन कहना बनाओ अकाउंट, जितने मैं अकाउंट बनाने की सोची ओपनिंग क्लोजिंग कितने, ओपनिंग है मशीनरी, क्लोजिंग है, मतलब अकाउंट नहीं बन सकता। आई एम गोइंग इन द सेम वे जो ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾउंट ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, नो अकाउंट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ डायरेक्ट मैथड ਚ यूज किते हो होना नहीं। ओके और दसो मशीन ਦੀ सेल किन्ने ਦੀ पाओगे रजत, 15,000 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विच एक्टिविटी इन्वेस्टिंग। ओके ਉਹਦੀ बुक वैल्यू ਨਾਲ 3,000 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ 4,000 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ नहीं करता। इतो सिर्फ मशीन का पॉइंट क्या है, सेल ऑफ मशीन 15,000 पॉजिटिव, यस ऑन, ठीक है यस ऑन, सेल हो गई। कहने आगे दसो परचेज का दी भाई, 14th पॉइंट व्हीकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 1,50,000 फॉर कैश, आउटफ्लो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उस तो बाद अगला एक इन्वेस्ट फिक्स्ड एसेट का पॉइंट से आ वाला, बट इतने कोई कैश फ्लो होया, नो लैंड वाज परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब फॉर अगेंस्ट डिबेंचर्स। ओके तो ओदा भी कोई पॉइंट नहीं आना, तो की आ गया सिर्फ व्हीकल परचेज नेगेटिव, तो नेगेटिव 1,35,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ओपनिंग क्लोजिंग वाला पॉइंट जितना ही मैं डिस्कस किया कि अकाउंट नहीं बनेगा कोई, सब कुछ गिवन है, बस उत्थों सोचो, यस और नो। नेक्स्ट वन देखो
और दसो की बचे। फोर्थ पॉइंट डन, फिफ्थ पॉइंट डन, सिक्स पॉइंट हो गया, सेवंथ गुडविल रिटर्न ऑफ केड़े मेथड्स काम आंदी इनडायरेक्ट, इत्थे किते काम नहीं आनी। एट पॉइंट सैलरी वाला डन, नाइन पॉइंट ऑफिस एक्सपेंस डन, टेंथ पॉइंट लैंड एंड डिबेंचर्स वाला किते काम नहीं आना, ना तो इन्वेस्टिंग के अंदर ना फाइनेंसिंग के अंदर। देन 11th पॉइंट fully paid equity shares face value 2 lakh were issued at 10% premium, the inflow कितना होया 2,20,000, issue of fully paid equity shares 2,20,000 positive। next one, next 12th हो चुका, 13 हो चुका, 14 डन। 15 डिविडेंड पेड केडी एक्टिविटी अगेन फाइनेंसिंग पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 40,000 रुपीज। उस तो बाद पॉइंट केड़ा बचे सिर्फ लास्ट, दैट इज गिवन क्लोजिंग कैश, वो तो नहीं यूज होना कितने फिलहाल। तो फाइनेंसिंग का आंसर आ गया 1,80,000 पॉजिटिव, एबीसी का आंसर आ गया टोटल 1,57,000 दैट इज पॉजिटिव। सो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡਾ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਰਮਲੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ डेट वाइज इट्स क्लोजिंग बट दे हैव यूज्ड इट एट अ ओपनिंग। तो इतने डेट दे एरर है, पुट इट एट 2020 ओके। तो ओपनिंग पुट करके क्लोजिंग ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ बैलेंसिंग फिगर। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर बाय चांस गलत डेट भी आई तो यू विल यूज द सेम, ठीक है। मींस फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 25,000 ਨੂੰ क्लोजिंग ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, फिर ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ फिर 1,57,000 नीचे only 25,000 means opening cash and cash equivalents were in negative, yes or no, ठीक है। कंपेयर चेक कर ले कितना कितना सी, डेट वाज गिवन 31 मार्च 21 और ऊपर तो उनके सी ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, तो ਆਪਾਂ क्लोजिंग ही सोचेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन का एरर है, दैट्स ओके, एनी डाउट। करो फिनिश करो इन्हें। और इतने देखो नोट्स नाल दे दी जिदा एग्जांपल कि लैंड वाज परचेज फॉर 2,50,000 फॉर बाय इशूइंग एट पार द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स 0% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इतने कोई कैश फ्लो नहीं है बट इट वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट है लैंड परचेज किया डिवेंचर इशू किए बट ए नॉन कैश, so it didn't form part of cash flow statement, okay। so wind up करो। देखो राजा, illustration 39, from the following balance sheet and additional information of X company limited as at 31st March 21 make out a cash flow statement for the year ending 31st March 21। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है, शेयर कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग सीधा उल्टा उल्टा गिवन है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस के अंदर तीन चीजा पईयां, दोस्तों केड़ी केड़ी, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड एसओपीएल सरप्लस, ठीक है। सो कैपिटल रिजर्व की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यस और नो, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा, सरप्लस इंक्रीज हो रहा, सरप्लस का इंक्रीज कितने का माना स्टार्टिंग ऑपरेटिंग दैट इज इंक्रीज इन एसओपीएल, जनरल रिजर्व का इंक्रीज कितने का माना ट्रांसफर टू रिजर्व ऑपरेटिंग ऐड कर दे। कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो रहा, एडजस्टमेंट होगी रिलेटिंग टू सम प्रॉफिट ऑन सेल, यस और नो। रिमेंबर ट्रेड पेबल्स के अंदर सीएल के अंदर ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल सीएसीएल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीएसीएल, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग गिवन है 20,000 क्लोजिंग गिवन है 24,000। नीचे चेक करो इधर है कोई रिलेटिव्स है ना कोई टैक्स वाले ने, लास्ट पॉइंट proposed dividend and provision for tax for the year 2020 were paid during 2021। मतलब जो पिछले साल सोचा सी वो अज पे करता, चक्री भला कैसी आ गया उन्होंने लिखन के बावजूद, यस और नो। तो मींस पुराना पे करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग खुद ही प्रोवाइडेड आओ, चक्री घुमाओगे इन शॉर्ट, ओके। सो प्रोवाइडेड वाला ऑपरेटिंग से ऐड करोगे और पेड वाला
फाइनेंसिंग च माइनस करोगे, यस और नो? फाइनेंसिंग टैक्स दी पॉइंट सी ऑपरेटिंग दे लास्ट ਵਿੱਚ ऐड करोगे, पहला प्रोवाइडेड और माइनस करोगे पेड वाला ऑपरेटिंग दे अंदर ही, फाइनेंसिंग नहीं बोलना। यार बोलिया कोई तो चुपूगा, एवरीवन इज बिजी है ना। नेक्स्ट दसो, सेकंड एडजस्टमेंट केड़ी करते हैं ਅਸੀਂ? प्रपोज डिविडेंड नीचे गिवन कंटिंजेंट लायबिलिटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टेल मी की करना है था? ओपनिंग वाला प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड, प्रोवाइडेड वाला ऑपरेटिंग चार्ज, पेड वाला फाइनेंसिंग माइनस, यस नाउ इट्स ओके। ठीक है, ओनली विल यूज दिस। उस तो बाद की यूज करते इंटरिम डिविडेंड, सिंगल अमाउंट गिवन है, प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड, सेम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एड एंड लेस। नेक्स्ट उस तो बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग 10,000 क्लोजिंग 45,000। नीचे की गिवन है, सेकंड पॉइंट चेक करो, रुपीज 2,000 हैज बीन रिसीव्ड एज डिविडेंड ऑन द ट्रेड इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट लैंड दा है, लीव कर दो, फोर्थ फिफ्थ सब लीव कर दो, सिर्फ 2,000 डिविडेंड रिसीव द पॉइंट गिवन बस। मींस इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया होगा सिंपली परचेज, परचेज विल बी डिडक्टेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड जो डिविडेंड रिसीव्ड है दैट विल बी यूज्ड किधर? ऐड इन ऑपरेटिंग और लेस इन ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग, वेरी गुड, सोच के बोलो। माइनस करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे लास्ट, और ऐड इन्वेस्टिंग, क्योंकि इट्स इन्वेस्टिंग इनकम। ओके, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स से चलो 1 2 3 4, तीन टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। पहला इनटेंजिबल देख लो, बहुत इजी है, गुडविल डिक्रीजिंग, रिटर्न ऑफ की करोगे, ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उस तो बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर थर्ड पॉइंट यूज होगा, a piece of land has been sold out in 2020-21 and the remaining has been revalued. Profit on sale and revaluation has been transferred to capital reserve. समझ रहे? इधर अकाउंट सोचो किया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 80,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन कितना? 55,000। आगे दसो की पॉइंट है? They are saying piece of land has been sold out and the remaining has been revalued. कुछ सेल करता, कुछ रिवैल्यू करता, और जो प्रॉफिट हुआ इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट गया, यस और नो? तो कैपिटल रिजर्व हाइफन प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व की कितनी वैल्यू सी? 10,000, ਇੱਥੇ आया 10,000। Now can you think of the sale? Yes or no? और कोई पॉइंट है देखो लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड? बैलेंस कितना आ रहा है रजत? 35,000, 35,000। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरीफाई। 35,000 की थोड़ी सेल है, इट विल बी एडेड इन द ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। ठीक है, आज के क्वेश्चन कुछ भी बोलूंगा तो चेक करेंगे। ठीक है, वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, so you need to be prepared. Yes or no, Miss Chakkar? Yes or no? दोस्तों सेल वाला पॉइंट कितने जाना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव, और प्रॉफिट कितने भी नहीं जाना, पी एंड एल से थोड़ी जा रहे हैं, कैपिटल रिजर्व से जा रहे हैं।
काली नहीं करनी, काली अगे टोए, ओए होए, ओए होए। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग है ना 90,000, क्लोजिंग 1,60,000। चेक करो पॉइंट्स। Depreciation on plant and machinery has been written off 15,000 in 2021 and no depreciation has been charged on land and building. Okay. So 15,000 the depreciation charged means by Brindle hyphen depreciation provided. और नीचे नाल adjustment given a machinery was sold for 18,000, WDV 20,000. No furniture has been sold during 2021. फर्नीचर तो बाद देख दे, इधर पॉइंट किया होगा WDV 20,000 sold for 18,000 प्रॉफिट और लॉस, लॉस कितना 2,000। तो हो जाऊगा पॉइंट आना सॉल्व करना, बैलेंस विल बी परचेजेस। आफ्टर दैट फर्नीचर अकाउंट ਦੇ ਅੰਦਰ ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, यस और नो। और नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ फर्नीचर ਦਾ क्या ਉਹਨਾਂ ਨੇ नथिंग हैज बीन सोल्ड एंड कोई डेप्रिसिएशन ਦਾ पॉइंट भी नहीं है। सिंपली ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ फर्नीचर ਦੀ डिक्रीज कर रहे हैं फिर डेप्रिसिएशन ही आऊगा। ओके यस और नो। बाकी पॉइंट्स भी देख लो। सिक्स पॉइंट इज डन, फिफ्थ वी हैव डिस्कस्ड, फोर्थ डिस्कस्ड, थर्ड डन, सेकंड डन, फर्स्ट डन, प्रपोज डिविडेंड डन। और देखो क्वेश्चन एसेट साइड गुडविल रिटर्न ऑफ डिस्कस हो गई। उन डेटर्स और बिल रिसीवेबल स्टॉक तीनों सीएसीएल कैश और बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग से ऐड करो। हो जाओगे क्वेश्चन, करो फिनिश अप करो। कोई डाउट आया पूछो। फर्नीचर अकाउंट इफ यू नीड यू कैन मेक, जरूरी नहीं बिकॉज सिर्फ कुछ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड का केस है। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव टाइम यू शुड मेक, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਚ ਆਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ, प्लांट एंड मशीनरी ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। फर्नीचर अगेन हम लिटिल यू कैन से इट्स अ चॉइस। हाँ ऑलमोस्ट ਤੁਸੀਂ ट्राई करोगे सारे। ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों ਲਈ ਕੀ ਆ वर्किंग नोट्स। ठीक है, सो पहली चीज जिसकी करनी की ਅਸੀਂ विल सिट इन द एग्जाम, एग्जाम बैठ के क्वेश्चन देख के ਤੁਸੀਂ अपने शीट जिथे क्वेश्चन स्टार्ट करना यू लीव द पेजेस। सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा कैश फ्लो 2 पेजेस ਚ ਆਣਾ, 2 पेज लीव कर देना, थर्ड पेज तो स्टार्ट करोगे अपना वर्किंग नोट्स। और ਤੁਹਾਡੇ शीट्स ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ हॉरिजॉन्टल ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, सो ਤੁਸੀਂ उस अकॉर्डिंग प्रॉपर सोच के जगह रख लेना। ठीक है, देन यू विल स्टार्ट विद द वर्किंग। ओके, चलो कंप्लीट करो।